हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में हमने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा था एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ मोहम्मद बिन तुगलक, चैप्टर 7, J.L. Mehta, Advanced History of Medieval India. So, Fakhruddin Muhammad Jona Khan, the eldest son of Ghiyasuddin Tughlaq, ascended the throne at Tughlaqabad, the fortified residence of his deceased father and third city of Delhi, without any opposition. He proceeded from Tughlaqabad to the Old Delhi 40 days later, and his coronation ceremony was held amidst great rejoicing at the Red Palace of Balban, which had been renovated by the orders of the new Sultan. His accession was hailed by all the people, high and low, Hindu as well as Muslims, who invoked blessings on him and sang his praises. He ruled for 26 years. Muhammad bin Tughlaq was the most highly educated of all the preceding sultans of Delhi. A scholar of Persian and Arabic, as well as he was well read in the subject of astronomy, philosophy, mathematics, medicine, and logic. He knew by heart a great deal of Persian poetry, understood it well, and in his conversation frequently quoted Persian verses. He was a good calligraphist too. क्या कहा जा रहा है कि जौना खान जो है, जो कि सबसे बड़े बेटे थे गियासुद्दीन तुगलक के, उनके मरने के बाद जो है गियासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद बिना किसी रोक टोक के जो है वो नए सुल्तान बन जाते हैं और तुगलकाबाद में वो जो है थ्रोन पर आते हैं। तुगलकाबाद दिल्ली का तीसरा शहर है। सबसे पहले तो ओल्ड दिल्ली बसा, फिर सिरी बसा जो अलाउद्दीन खलजी ने बसाया, और थर्ड इज़ तुगलकाबाद। तो इनके जो है ना, मतलब तुगलकाबाद में इनके थ्रोन पर बैठने के 40 दिनों के बाद बलबन के लाल महल में जो है इनका जो है कोरोनेशन, राज्याभिषेक हुआ, और हर किसी ने जो है बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स दिया इनको, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऊंचे लोग हों नीचे लोग हों, सब ने ब्लेसिंग दिया, और ये 26 साल तक इन्होंने रूल किया। ये दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुल्तान थे, विद्वान थे ये पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में, एस्ट्रोनॉमी है ना, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और लॉजिक का इनको काफ़ी ज्ञान था। ये जो है बहुत सारे पर्शियन पोइट्रीज़ को एकदम इन्होंने रट लिया था, दिल से इनको याद था, और जब भी ये अपना कुछ भी कॉन्वर्सेशन कर रहे होते थे उसमें ये बहुत सारे पर्शियन दोहों का यूज़ करते थे। ये एक बहुत अच्छे कैलीग्राफिस्ट भी थे, मतलब जो कैलीग्राफी क्या है, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली और इन अ डेकोरेटेड वे, तो ये भी किया करते थे। Being a son of a warden of marches, Muhammad bin Tughlaq had received excellent military training. He started his career as a soldier. He was promoted Master of the Horse by Sultan Mubarak Shah Khalji and confirmed in the assignment by Khusro Shah, albeit he deserted the latter and joined hands with his father in bringing about the fall of Khusro Shah. A crown prince with the exalted title of Ulugh Khan, he led the imperial forces to Telangana and, in the second attempt, not only humbled its ruler but also annexed the kingdom of Warangal to the Sultanate. His ambitions soared high when he ascended the throne, and the people also expected great things from him as a monarch, for he was not less famous for his gallantry in the field than those accomplishments which render a man the ornament of a private society. He was a man of high moral character, led an austere life like his illustrious father, and a Sunni Mussulman. He was regular at his daily prayers and abstained from drinking in public. तो एक वार्डन ऑफ मार्चेस के बेटे होने के मतलब हैसियत से जो है इनको मिलिट्री ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी मिल गई। ये इन्होंने जो है एक सैनिक से अपना करियर शुरू किया। बाद में इनके ब्रिलियंस को देख करके इनको मास्टर ऑफ हॉर्सेस बना दिया गया। उसके बाद जो है ये सुल्तान मुबारक शाह खलजी ने जो है इनको जो है ये मास्टर ऑफ हॉर्सेस दिया, और बाद में इनको जो है असाइनमेंट में खुसरो शाह ने रख लिया। खुसरो शाह मुबारक शाह खलजी के जो है प्राइम मिनिस्टर थे, जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा। लेकिन
मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि खुसरो शाह का साथ छोड़कर अपने पिता का साथ दिया और खुसरो शाह को जो है गिरा दिया। और फिर उलुग खान का टाइटल मिला मोहम्मद बिन तुगलक को। और तेलंगाना में पहले अटेम्प्ट तो इनका अनसक्सेसफुल रहा, दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने तेलंगाना के ही रूलर को नहीं, वारंगल के भी किंगडम को कैप्चर कर लिया। इनके जो है एम्बिशंस, इनके जो एस्पिरेशंस थे वो बढ़ रहे थे और लोग भी इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इनको गैलेंट्री मतलब सैनिक वाली उपाधि में इनको इतनी चीज़ें अवेलेबल थी जो प्राइवेट सोसाइटी में एक ऑर्नामेंट की तरह यूज़ हो, है ना। मतलब इनको काफ़ी अकम्पलिशमेंट्स थे, तो लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि ये जो है अच्छा खासा जो है इम्पीरियलिज़म करेंगे, इम्पीरियलिस्टिक डोमेन बनाएंगे, शायद अलाउद्दीन खिलजी से भी बढ़कर। ये जो है इनका कैरेक्टर, ये बहुत चरित्रवान थे, इनका कैरेक्टर काफ़ी सही था, अपने पिता की तरह ही थे। एक सुन्नी मुसलमान थे और रेगुलर प्रेयर्स करते थे और पब्लिक में ड्रिंक नहीं करते थे। Reign of Muhammad bin Tughlaq started with everything in his favor. He succeeded a capable monarch who had enjoyed the confidence of the people. He inherited a vast empire from his illustrious father, to consolidation of which he had personally made substantial contribution. Peace and tranquility prevailed in the Sultanate. The distant provinces were under the effective control of the center, and royal treasury was full to the brim. With these assets, youthful and energetic monarch was expected to do better than the earlier sultans of Delhi. Muhammad bin Tughlaq was fully conscious of the supreme power and resources wielded by him. He was rather overconfident of his capabilities to make use of these as a sovereign. He was an abstract thinker and an innovator in the field of state polity, albeit he was an idealist and not a practical statesman. तो हम लोग पहले थोड़ा देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, इन्होंने जब अपना सुल्तान वाला करियर शुरू किया तो हर चीज़ जो है लग रहा था कि इन्हीं के फेवर में है, लक इनको सपोर्ट कर रहा है। एक केपेबल मोनार्क को इन्होंने सक्सीड किया, इनके पिता जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने पद को संभाला, है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जो है एम्पायर को कंसोलिडेट करने में अपने पिता का साथ दिया। पूरे एम्पायर में शांति थी, है ना। दूर दूर के भी प्रोविंसेस पर इनका कंट्रोल था, सब अंदर में थे सेंटर के। साथ साथ जो है रॉयल ट्रेजरी धन जो है वो बहुत सारा था। एसेट्स जो हैं, इन सारे एसेट्स के साथ मोहम्मद बिन तुगलक पूरे कॉन्फिडेंट थे कि वो कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। रैदर कह लो कि उनकी इतनी कैपेबिलिटीज़ थी कि वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट भी थे। वो इनोवेटर थे, है ना, वो नए आइडियाज़ लेकर आते थे क्योंकि इतने पढ़े लिखे थे। सो ही वॉज हैविंग न्यू आइडियाज़ एंड ऑल। और ये जो है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक इनोवेट तो कर पा रहे थे बट प्रैक्टिकल नहीं था इनका अप्रोच, ठीक है, प्रैक्टिकल स्टेटमेंट नहीं थे। इन्होंने जो चेंजेस लाए स्टेट्स पॉलिसी में वो थोड़े इम्प्रॉबेबल चेंजेस थे, सोच समझ के नहीं लाए गए। लाइक अलाउद्दीन खिलजी, ही वॉज अ ग्रेट इम्पीरियलिस्ट हु वॉज ईगर टू एक्सटेंड हिज sway over whole of Indian subcontinent. He believed in geopolitical entity of India and oneness of its people, had clear concept about political unity of the country, wanted to break the barriers between north and south, stood for the extension of direct administrative control of central government over all parts of India by eliminating regional and feudal principalities. तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही इनका भी सपना था कि पूरे भारत पर जो है इनको जो है राज करना है। और ये मानते थे कि पूरा भारत एक है, जियो पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ इंडिया एंड वननेस ऑफ इट्स पीपल। यहाँ के लोग अलग अलग नहीं है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को रूल नहीं करना चाहिए, पूरे भारत पर एक ही इंसान को रूल करना चाहिए। साउथ हो नॉर्थ हो, सबके बीच में वहाँ पर दूरी नहीं रहनी चाहिए, रीजन पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सब जो है वो एक रूलर के अंदर होना चाहिए। इन्होंने जो है ओपन सर्विसेज दिया हर इंडियन को मेरिट बेसिस पर, और हिंदू और मुस्लिम में इस मैटर पर बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं किया या किसी और स्टेट पॉलिसी के मैटर पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। इनफैक्ट अगर कहें तो पॉलिटिकल आउटलुक में मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने समय के सुल्तान से काफ़ी आगे थे।
Accordingly, Muhammad bin Tughlaq had been represented by his contemporaries as one of the wonders of his age in which he lived. One of all the sultans of Delhi, he is perhaps the most grossly misunderstood monarch. It is a pity that we possess no official record of his reign, and the only source of true information, his autobiography, is meager and insufficient. His lofty designs and his ambitious project were beyond the comprehension of bureaucracy as well as the subject. Barni, Ibn Battuta, and Isami could not understand him either. No wonder they took a prejudiced view of his character and administrative policy. Barni was in fact so much obsessed with the five ambitious projects of Muhammad bin Tughlaq that he did not care to give a systematic narrative of his reign in chronological order. Again, instead of tracing the genesis of these projects and giving the analysis that of the causes leading to their failure, he dwells on the disastrous effects by giving an exaggerated account of the sufferings of people and ruthless persecutions of the Sultan. So, also is the case with the chronicles of Ibn Battuta and Isami. Their record of Muhammad bin Tughlaq has therefore to be reviewed वेरी केयरफुली. कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एक वंडर ऑफ द एज थे अपने समय में, इतना आगे का सोचते थे वो, लेकिन उनको बहुत ही गलत समझा गया क्योंकि बाकी लोग आगे का नहीं सोच रहे थे. और बहुत ही दुख की बात है कि उनके टाइम के लिए हमको पढ़ने का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है उनकी ऑटोबायोग्राफी को छोड़कर, और उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो इनसफिशिएंट है उनके कैरेक्टर को जानने के लिए. कोई नहीं उनको समझ पाया, ब्यूरोक्रेसी हो, सब्जेक्ट्स हो, सब जो हैं उनको गलत समझ रहे थे. बर्नी, इब्न बतूता और इसामी जो हैं ये लोग भी उनको सही से पेश नहीं करते हैं उनके बारे में. रैदर ये लोग जो है ऐसा लिखते हैं कि थोड़ा नफ़रत करके लिख रहे हैं उनके कैरेक्टर के बारे में, पहले से ही बुरा सोच करके तब लिख रहे हैं. बर्नी इनफैक्ट ऐसा था ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 जो है एडवेंचरस प्रोजेक्ट्स उन्होंने कैरी किया था. बर्नी इससे इतना ऑब्सेस्ड थे कि वो बस वो बिना कोई सिस्टमैटिक वे के, बिना कोई क्रोनोलॉजी के बस इसी 5 प्रोजेक्ट को ही बताते रह जाते और फेलियर को. रैदर वो अगर सिस्टमैटिक वे में पूरी क्रोनोलॉजी देते, बताते कि क्यों फेलियर हुआ, एनालिसिस देते, तो वो बेटर होता. बट ऐसा कुछ नहीं किया गया और बाकी लोगों ने भी जो है ना इनको डिज़ास्ट्रस दिखाने की कोशिश की, इनके बुरे चीज़ों को एग्जैगरेट किया, है ना. तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो रिकॉर्ड है जो कि इब्न बतूता और इसामी या बर्नी ने लिखा है उसको बड़े ध्यान से पढ़ने के लिए है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना इनका मतलब इन राइटर्स का टिल्टेड है व्यू अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक. अभी मंगोल इन्वेजन के बारे में भी हमने पहले पढ़ा. मोहम्मद बिन तुगलक's reign synchronizes with the reappearance of Mongols on the Indian borders. Alauddin Tarmashirin, the Chagatai ruler of Transoxiana, invaded Sindh in the beginning of his reign. Before his government was settled on the receipt of intelligence from Multan, the Sultan made prompt arrangement for the defense of the kingdom and the region, and the entire region from Delhi to Salt Range was transformed into an army camp. According to Isami, the Mongols were defeated and repulsed, though Firishta says that they were bought off. Tarmashirin and his followers had entered the fold of Islam. Ibn Battuta, before his arrival in Delhi, had stayed at the court of the Chagatai chief at Bukhara for about 2 months. This was the first and last foreign invasion that India faced during the reign of Muhammad bin Tughlaq. The Sultan moved up to Lahore and dispatched the royal forces to liberate the frontier region from the hands of the Mongols. The border towns of Kalanor and Farashur, जिसको कि आज पेशावर कहते हैं, were occupied and garrisoned by the state troops. तो मोहम्मद बिन तुगलक जब रेन पर मोहम्मद बिन तुगलक जब थे सोल्जर ही, जब उनके पिता का ही रूल चल रहा था, तभी जो है एक्चुअली में अलाउद्दीन तरमशरीन जो हैं, जो कि चगताई रूलर थे ट्रांसोक्सियाना के, उन्होंने जो है सिंध पर आक्रमण कर दिया. और फिर ये जैसे पता चला तो मोहम्मद बिन तुगलक को इंटेलिजेंस से, अपने स्पाइस से, तो इन्होंने जो है क्या किया, डिफेंस लाइन अरेंज किया
पूरा दिल्ली से लेकर के सॉल्ट रेंज तक एक आर्मी का खेमा बन गया था। ईसामी के हिसाब से मंगोल्स को मार दिया गया था और भगा दिया गया था। फिरिश्ता के हिसाब से जो है मंगोल्स को हरा दिया गया था और भगा दिया गया था, और फिरिश्ता के हिसाब से मंगोल्स को ख़रीद लिया गया था। तरमशरीन और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो इस्लाम के फॉलोअर्स बन गए थे। जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि मंगोल इनिशियली इस्लाम के फॉलोअर्स नहीं थे, ये बुद्धिज़्म और उसको अंधविश्वास के साथ जोड़ के अपने लोकल ट्रेडिशन के फॉलो किया करते थे। पर तरमशरीन जो है वो इस्लाम के फोल्ड में आ गए थे अकॉर्डिंग टू फिरिश्ता। इब्न बतूता अपने इंडिया आने से पहले वो कुछ समय तक चगताई चीफ जो बुखारा के थे उनके यहाँ भी 2 महीने तक रहकर आए थे। ये पहला और आखिरी इन्वेजन था फॉरेनर का मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में। सुल्तान जो है वो लाहौर गए, उन्होंने रॉयल फोर्सेस को डिस्पैच किया और जो भी रीजन मंगोल्स ने कैप्चर किया था सबको जो है मंगोल्स से फ्री करवाया। बॉर्डर टाउन्स जैसे कि कालानौर, पाराशुर, इसको जो है ऑक्यूपाई करके यहाँ पर आर्मी ट्रूप्स लगाए गए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर सच अटैक्स। नाउ बिफोर रीडिंग द ऑल अदर थिंग्स, 5 एडवेंचरस जो चीज़ें हमने बात की कि 5 एडवेंचरस प्रोजेक्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन एक अर्ली रिवोल्ट करके एक छोटा सा टॉपिक है, दिस वी विल बी डूइंग राइट नाउ, एंड देन वी विल बी रीडिंग अबाउट हिज एडवेंचरस टेक्स, क्या क्या इन्होंने एडवेंचरस किया। तो अर्ली रिवोल्ट्स, बहाउद्दीन गुरशास्प, गवर्नर ऑफ सागर, raised a standard revolt in 1326-27. He was ambitious cousin of Muhammad bin Tughlaq, a sister's son of Ghiyasuddin Tughlaq, who wielded considerable influence in the south. The Sultan sent an army under the command of Ahmad Ayaz entitled Khwaza-e-Jahan to deal with the rebel, and himself proceeded to Devgiri so as to exert pressure on the neighboring chieftains and governors. Gurshasp was defeated in an encounter which took place somewhere to the south of Godavari river and took shelter with the Hindu Rai of Kampila. The fort of Kampila was conquered by imperial army after 2 months' siege, albeit the Rai and Gurshasp escaped and were given a hot chase by royal contingents. The Rai fell fighting in Anigundi, जिसको कि हुसदर्ग भी कह रहे हैं, while Gurshasp was captured by another Hindu chieftain who professed loyalty to Delhi. He was brought in chains to the Sultan and ordered him to be flayed alive. The 11 sons of Rai of Kampila embraced Islam and were taken under royal protection. Some of them joined the imperial service. क्या कहा जा रहा है? बहाउद्दीन गुरशास्प जो कि सागर के गवर्नर थे और मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे, है ना, गियासुद्दीन तुगलक की बहन थे, उनके बेटे थे बहाउद्दीन गुरशास्प। तो ये जो है इनका साउथ में बहुत इन्फ्लुएंस चलता था बहाउद्दीन गुरशास्प का। और इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक के ख़िलाफ़, या कह लो इम्पीरियल आर्मी के ख़िलाफ़ 1326-27 में। सुल्तान ने जो है एक आर्मी भेजा अहमद अयाज़ के अंदर, और अहमद अयाज़ को ख्वाजा-ए-जहान की उपाधि दी। और सुल्तान खुद भी देवगिरी गए ताकि नेबरिंग चीफ्टन्स और गवर्नर से जो है प्रेशर डाल सके कि वो इनका हेल्प ना करें गुरशास्प का। गुरशास्प को जो है एक इनकाउंटर में हरा दिया गया, जो कि गोदावरी रिवर के साउथ में हुआ। और गुरशास्प जो है वो उन्होंने क्या किया, वो हिंदू राय ऑफ कंपिला के साथ जो है उन्होंने शेल्टर ले लिया। कंपिला के किले को 2 महीने तक सीज करने के बाद फाइनली इम्पीरियल आर्मी ने उसको कैप्चर कर लिया, पर कंपिला राय और गुरशास्प जो हैं वो भाग गए। तो उनको जो है इम्पीरियल आर्मी ने एक हॉट चेस दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद राय जो हैं वो अनैगुड़ी में गुरशास्प से जो है वो अनैगुड़ी में जो है, जब गुरशास्प जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया गया, और राय को जो है वो अनैगुड़ी में पकड़ा गया और वो हार गए, और गुरशास्प जो है
उनको दूसरे हिंदू चीफ्टेन ने जो है वो पकड़ लिया, जो कि सुल्तान से लॉयल थे, और फिर उनको जंजीर में जकड़ के सुल्तान के पास लाया गया इन दोनों को। सुल्तान ने कहा कि फॉर देम टू बी फ्लेड अलाइव। 11 सन्स जो है, जो कंपिला राय ऑफ कंपिला के 11 सन्स थे, सब ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और सुल्तान ने उनको रॉयल प्रोटेक्शन दे दिया। उसमें से कुछ ने जो है बाद में इम्पीरियल सर्विस भी ज्वाइन कर ली। While at Devgiri, Sultan was told that Nag Nayak, the Ran of Kondhana, did not pay the tribute to Delhi. On his orders, the fortress was besieged by contingent of the royal army. It was defended gallantly by the Rana, and the siege lasted about 8 months. Rana ultimately submitted and was allowed to retain his estate and as an imperial vassal. तो जब देवगिरी में सुल्तान थे तो उनको कहा गया कि नाग नायक जो है, जो कि राणा है कोंधना के, वो दिल्ली को ट्रिब्यूट नहीं दे रहे। तो 8 महीने तक उनके किले को जो है इन्होंने घेराबंद कर लिया। उन्होंने, राणा ने काफ़ी कोशिश की कि बहादुरी से वो लड़े, लेकिन फाइनली पॉसिबल नहीं हो पाया और राणा ने जो है सबमिट कर दिया 8 महीने के बाद। राणा को जो है उनका किंगडम रूल करना अलाउ कर दिया गया, बस कहा गया कि आप जो है इम्पीरियल वसाल हैं, आप दिल्ली के अंदर हैं। Muhammad bin Tughlaq was celebrating the victory of Kondhana at Devgiri when he received the intelligence about the rebellious intention of Behram Eba, entitled Kishlu Khan, the viceroy of Multan, Uch and Sindh. He had expressed resentment against the inhuman and disgraceful treatment meted out to Gurshasp and his associates. तो मोहम्मद बिन तुगलक जब सेलिब्रेट कर रहे थे कोंधना में अपनी विक्ट्री को, तो उनको पता चला कि बहराम ऐबा, जो कि किस्लू खान की जिन्हें उपाधि दी गई थी, जो मुल्तान, उच्च और सिंध के वॉइस रॉय हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया है, वो जो है वो सुल्तान के अगेंस्ट हो गए। क्यों? उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि गुरशास्प और उनके जो दोस्त के साथ जो ट्रीटमेंट किया सुल्तान ने, वो अच्छा नहीं लगा। सुल्तान जो है वो इमीडिएटली ही रश्ड बैक टू दिल्ली एंड after making adequate preparations marched upon मुल्तान and at the head of vast army। तो उन्होंने प्रिपरेशन करके वो मुल्तान गए एक वास्ट आर्मी के साथ, किशलू खान को हराया और फिर मार दिया गया अबोहर के बगल में। सुल्तान मेड अ ट्रायम्फेंट एंट्री इनटू मुल्तान एंड ग्रांटेड जनरल पार्डन टू इट्स इनहैबिटेंट्स ऑन द इंटरवेंशन ऑफ शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी। सुल्तान जो है वो गए मुल्तान में और फिर उनके वहाँ पर रहने वालों को जो है माफ़ कर दिया शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी के कहने पर। सक्सेसफुल हैंडलिंग ऑफ ऑल दीज रिवेलियंस इन्हांस द प्रेस्टीज ऑफ सुल्तान एंड स्ट्रेंथन द होल्ड ऑफ इम्पीरियल गवर्नमेंट ओवर द डिस्टेंट प्रोविंसेस। और अब तक हम देख रहे हैं कि ये सारे जो रिवोल्ट्स हो रहे थे, सबको मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बहुत ही क्या कर रहे थे, सही तरीके से हैंडल कर रहे थे। इससे जो है उनकी इज्जत बढ़ रही थी और इम्पीरियल गवर्नमेंट जो है डिस्टेंट प्रोविंसेस तक, लोगों को पता था कि मोहम्मद बिन तुगलक रिवोल्ट मैनेज कर लेते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, तो लोग जो है वो लॉयलिटी दे रहे थे थ्रोन को। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडवेंचरस प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे पहला आता है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।